Hello students, welcome again to the second class of chapter 3 heat and temperature. Okay, we are studying about the heat transfer. About what? About the heat transfer mechanisms. Students, before studying this, you have to know about the materials that can absorb the heat or pass it and do not absorb the heat. On the basis of this, we can divide any object into the three classes, that is insulator, poor conductor and good conductors. Insulator, zero conductivity, that means they do not allow heat conduction. Example asbestos. पुअर कंडक्टर इजीली अलाउ नहीं करते, बट हाँ कुछ हद तक अपने में से जाने देते हैं, जस्ट लाइक वुड एंड ग्लासेस. एंड कंडक्टर्स इजीली कंडक्ट द हीट. एग्जाम्पल्स मैटर एंड वाटर, metals and water. Students, this is most important topic for the conduction. What is conduction? Conduction is the transfer of energy as heat between the particle as they collide from the substance. यदि एक दूसरे के टच में है तो वो क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स में होते हैं एटम्स के. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन. मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विद द डिफरेंट टेम्परेचर. मैंने आपको इसमें पानी गर्म करने वाला एग्जाम्पल बताया था. ओके. देन कन्वेक्शन करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो जाएंगे ना, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड. Okay. What is radiation? Radiation is the transfer of energy by the electromagnetic waves. Actually no need of medium in the process of radiation. Understand? Then next important questions बनते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंसेस एंड रेडिएशन एंड कन्वेक्शन में डिफरेंसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, as the next topic we have to study about the effects of the heat. What about the effects of the heat? Okay, firstly we have to study about the effect, that is increase in temperature. Increase in temperature. Students, you know about that when we give heat to any substances, it definitely increase in its structure. You know ना, it definitely increase in its structure. ठीक है, sorry, definitely increase in its temperature. Okay students, put attention that on heating up an object, it absorbs heat and temperature increases. I already told you about that. Okay. Then on cooling down, what will happen on the cooling down? On cooling down, the object releases heat and its temperature fall. You know that where where the heat releases to the environment. To equally rise the temperature of different substances of same mass, we need to provide different amount of it. यदि दोनों का सेम टेम्परेचर है बट दोनों का टेम्परेचर सेम ही बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए मैं 1 ग्राम वाटर ले लूँ और 1 ग्राम ऑयल ले लूँ, दोनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी हीट मैं वाटर वाले को दूँ उतनी ही हीट ऑयल वाले को दूँ. दोनों का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है. ये जिसके कारण होता है इसे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी. वी नीड टू प्रोवाइड डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट. ओके. द क्वान्टिटी ऑफ हीट, दैट इज Q, absorbed and emitted by an object depend on the following. Actually Q is the amount of heat, m is the mass and T is the del T is difference in temperature. जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा हीट दोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा. वन साइड इज इक्वल, वन साइड इज सेम, देन वी कैन कंपेयर दिस. हियर व्हाट इज द S? Actually S is the proportionality constant that is known as the specific heat capacity. Specific heat capacity. नाउ जब हमको किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी रहती है तो मैंने आपको बताया था कि उस चीज़ को एक साइड में करके बाकी सब चीज़ों को दूसरे साइड भेज देते हैं.
Q अपॉन M इंटू डेल टी लिखा, ठीक है। Q इज द जूल, M मीन्स मास किलोग्राम एंड T इज द टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट की यूनिट होगी जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ मुझे ये डिफाइन करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मैं इसे डिफाइन कैसे करूँगी? मैं यदि यहाँ पर बाकी सबको 1 कर दूँ तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 1 ही आ जाएगी। देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस का 1 यूनिट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की नीड होगी वो क्या होगी? उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स डिफाइन करने आता है एग्जाम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप ध्यान से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ही मिलता जुलता है टॉपिक हीट कैपेसिटी, वो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया आपका हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी एंटायर मास का बढ़ाना है। अंडरस्टैंड? वहाँ पर हम 1 ग्राम ले रहे थे, यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर हम ले लेंगे एंटायर मास। ओके, हीट कैपेसिटी इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, दैट इज जूल इंटू किलोग्राम। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर मास ऑफ सब्सटेंस, पूरा जितना भी दिया हुआ है सबका बढ़ाना है। अंडरस्टैंड? देन अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, दैट मीन्स हीट के इफेक्ट से कोई चीज़ें कितनी फैल रही हैं, दैट कम्स अंडर द थर्मल एक्सपेंशन। तो यदि हम स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से निकालना चाहें कि कितनी लेंथ में इंक्रीमेंट हुई है, तो हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट इनटू टोटल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिख रहा है आपको बेटा? इंक्रीज इन लेंथ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अल्फ़ा की? अल्फ़ा इज इंक्रीज इन लेंथ, मतलब ये भी सेंटीमीटर में होगा। इनिशियल लेंथ मतलब ये भी सेंटीमीटर में है, एंड टेम्परेचर मतलब डिग्री सी में, ठीक है। तो द यूनिट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि लेंथ की यूनिट और लेंथ की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आयरन के लिए दिया हुआ है। अब हम देखते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन ऑफ द एरिया, ये एरिया बढ़ा रहा है पूरा, ठीक है, ऑन विच अकर्स ऑन द राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हैं? बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए जो कोफिशिएंट आएगा वो हो जाएगा आपका सुपरफिशियल कोफिशिएंट, जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। सेम फॉर्मूला, इंक्रीज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 2a भी बोल सकते हैं इसको, क्यों? मतलब आप इसको कंपेयर कीजिए ना, फिर सब में से रिलेशन निकालिएगा। एंड चूंकि कोफिशिएंट्स हैं तो कोफिशिएंट्स का जो आपको फॉर्मूला निकलेगा या स्केल निकलेगा, दैट आर द सेम जूल पर डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिनोटेड बाय द गामा, दिस साइन इज नोन एज द गामा। इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका ये होमवर्क हो जाएगा कि आप इन तीनों में रिलेशन, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशंस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केबल्स इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स बिटवीन द पोल्स में कॉन्ट्रैक्ट
and break during the winters and may sag in summers due to the expansion. विंटर में श्रिंक हो जाते हैं एंड समर में फैल जाते हैं. While constructing a bridge, steel regrets are used. One end of regrets is fixed in the concrete, while the other is supported by the rollers. This is done because if there is any temperature change, यदि टेम्परेचर चेंज होगा जो गर्डिल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी या फैल जाएंगी, ठीक है, और पिलर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. देन वाइल लेइंग ऑन द रेलवे ट्रैक्स ऑन अ वुडन प्लैंक सम गैप्स छोड़ दिया जाता है. क्यों? क्योंकि यदि मान लो गैप्स ना छोड़े जाए तो वो जब गर्मी में फैलेंगी तो एक दूसरे से टकरा के क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी, ठीक है. एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. व्हाट इज दैट? दैट इज हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड. टू टाइप्स के होते हैं, अपीयरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन. ओके, next topic is heat expansion in gases. Two types are there, that is the constant pressure and constant volume. After that change in physical state, that is the third one. constant pressure पे, ठीक है, वॉल्यूम में हमको ये कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंड हुआ है? यदि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि हाँ इसमें क्या हुआ है, आपका हीट हुआ. क्यों? क्योंकि हीट देने से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाते हैं. तो he hence the coefficient of volume expansion, that is the, you know that increase in volume upon initial volume into increase in temperature, that is the formula. Again, ठीक है, सेम वैसे ही यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज होता है. सेम वही आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, that is increase in pressure upon initial pressure into increase in temperature. Students, next one is in physical changes. You can see this diagram, that is the water on freezing or cooling, that means removing heat it becomes solid, and on giving heat it becomes liquid. As same as water, in giving heat it becomes evaporate, and on the vapors after condensation it becomes the water. Okay students, only a few topics of left in this chapter, that we will study in our next class. Thank you.